thank you first of all of you for staying on. This is Delhi. Most people in Delhi are khai piye khiske. In any case, the Indian way is when a flight stops, before the seatbelt signs go off, everybody's up, and then the cabin crew have to tell you to shut up and sit down, etc., etc. So I would have expected this hall to clear out the moment the credits began to run. That it hasn't is a tribute to the quality of the film and also, Vishal, the affection and respect in which you and your crew are held in Delhi. So, thank you all for staying on. What am I doing on this panel? I don't quite know because I'm not somebody who knows very much about cinema, unless you're talking about cinema of the 60s or 50s maybe, even better. So the question was raised in my office today that how come you said yes to doing this? I said, I'll do anything Vishal asks me to do. Thank you. Vishal, I dropped your name and found that excuse. So thank you very much for doing this. Now let's get started. इसका आइडिया सबसे पहले आपको कब आया? क्योंकि बुक तो पहले आई थी. जी हाँ, ये बुक जब आई थी तब मुझे फर्स्ट टाइम ऑफर हुई थी. अमर भूषण जी जो उस वक्त काउंटर एस्पिनाज यूनिट के डायरेक्टर थे, उन्होंने बुक लिखी थी. और ये बुक जब मुझे पहली बार एक्चुअली ऑफ़र हुई तो मैंने इसको पास कर दिया था. मैं उस वक्त इतनी किताबें थी मेरे पास कि मेरा और एक किताब लेने का मन नहीं था. पर आजकल किताबें आती भी बहुत ज़्यादा है. जी हाँ, पर अब इस तरह की तो आएंगी नहीं क्योंकि आई थिंक अब एम्बार्गो है लिखने के लिए किसी भी ऑपरेशन पे ऑफिशियली. बट ये किताब एक्चुअली व्हाट ही इज सेइंग, लेट मी if I interrupt you, let me put that in perspective. Now government has restrictions on people who served in the government, particularly in security agencies. They cannot come out and start writing about their lives unless they get permission and they get their text and their content cleared by him. जी, and all the best to them for that. जी सो पर ये बुक का बड़ा स्ट्रेंज, आई थिंक वो डेस्टिनी की जो अभी हम बात करने की डेस्टिनी है कि ये इस वक्त पे है. इरफान साहब मेरे दोस्त एक्टर, हम सब प्यार करते हैं, वो मेरे पास आए कि ये किताब आपने क्यों छोड़ी. क्योंकि जब वो राइट्स लेने गए थे तो अमर जी ने उन्हें बोला कि मैंने तो ऑफ़र किया था आपके दोस्त को, उन्होंने छोड़ दिया. तो इरफान ने मुझे बहुत डांटा, बहुत गालियाँ दी. और मैंने जब अमर जी से दोबारा बात की तो ये किताब किसी और के पास थी. फॉर्चुनेटली फॉर मी एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर दैट फिल्म मेकर दैट ही कुडंट मेक इट. एंड जब इसके राइट्स फ्री हुए तो मैंने एकदम इसको मैंने ले लिया, क्योंकि इस किताब की जो डिटेल्स हैं वो इतनी अच्छी हैं. ये इट्स बेस्ड ऑन अ रियल केस, Escape to Nowhere, where we had a mole in our security agency, in our external intelligence agency, and the surveillance was done on him. And before the action could be taken against him, he was taken away by CIA. So I found it very interesting, but there was no third act in the book. Third act where the Charu's character goes, she's recruited and sent back and planted in the family, was not there. And my co-writer Rohan is also sitting here, and we started working on it. The first thing was, we can't end the film where the mole is taken away and we are just seeing. Nobody would have stayed, in the auditorium for that to feel. So to feel that, to bring him back. So that's how it all started. And we cooked up the third act, and lots of things, fictional things were put in the story, because the Charu's character actually in real life, she also went away with that man. Maji's character was not there, so we spiced it up, जो हम फिल्म वाले करते हैं लोगों को फंसाने के लिए. मेरी एक शिकायत है इसमें आपसे कि आपने क्रेडिट में बोला संत कबीर, संत रहीम, गुलजार साहब को संत क्यों नहीं लिखा? जी मेरा बड़ा लिखने का मन था, पर सेंटूर तो वो भी डिजर्व करते हैं. जी बिल्कुल, एकदम मेरा बिल्कुल मन था कि संत गुलजार लिखें साथ में. पर मुझे ये बात मालूम थी कि गुलजार साहब के साथ
कभी इस तरह की चीज़ों पे वो इतनी बुरी तरह नाराज़ हो जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कबीर और रहीम के साथ रखने मेरा नाम की। लेना था, वैसे कोई बात नहीं। जी जी So, बिल्कुल। just to give you the perspective, the original person was Rabindra Singh. He and his family escaped through Nepal. They crossed the land border into Nepal, and then the CIA got them into the US. So that was the story. Now, and he's right that if it was just the escape, it would be a little documentary, but not a film. So rest is creative license. Now, I have the option of starting from to my left or to my right, but because Vamika is from my city, I start from there. So, when did you, what was your first response? You must have been just starting out in Bombay cinema when you saw, when you were shown this script, this character. How did this evolve in your mind? नहीं, ऐसे तो मुझे 10 साल हो गए हैं बॉम्बे रहते। तो ये फिल्म भी तो 10 साल पुरानी, 2016 के आसपास तो शुरू हुई है ये फिल्म। तो मैं और सर एक और शो कर रहे थे नेटफ्लिक्स के लिए, तब मैंने ऑडिशन दिया था और उसमें फाइनलाइज हो गई थी, तो लेकिन वो शो बना नहीं। तो मैंने कहा शिट, एक ही मौका था विशाल सर के साथ काम करने का, गया। साजिद इसको ब्लीप कर देना। हाँ गो अहेड। हाँ, तो मैं किसी और शो का शूट कर रही थी मसूरी में, तब ये भी मसूरी में थे और मैं विक्रम सर विशाल सर के घर गए, रेखा मैम से मिले, तब इन्होंने बातों बातों में मुझसे खुफिया की बात की थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि ये मुझे फिर से कंसिडर कर रहे हैं किसी अपनी फिल्म के लिए। तब बात शुरू हुई थी और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और चारू के कैरेक्टर को पढ़ा, मैं बस चाहती थी कि ये हाँ कर दे और इन्होंने कर भी दी। पर मुझे ये पता था कि ये प्ले करना बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि चारू एक माँ है और जिस तरह की जर्नी आप देख रहे हैं फिल्म में, मैं कभी माँ नहीं बनी हूँ, ना मेरी शादी हुई है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इमोशन मैं कैसे लाऊंगी। वो माँ और बच्चे का जो रिश्ता है, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ख़ास रिश्ता होता है और मैं बहुत नर्वस थी इस चीज़ को लेके, लेकिन विशाल सर थे मदद के लिए। ऐसे एक वो सीन है जहाँ पे ये जब पूरा भांडा फूट जाता है कि इनको पता चल जाता है कि स्पाई कर रहे हैं, इनको पता चल जाता है कि हमारे घर पे कैमरास लगे हैं। तो वो सीन था जब वो बच्चे को वो कह रहे कि साथ लेके चलेंगे, तुम भी चलो। तो विशाल सर ने मुझे उस वक्त ये बोला था कि आई थिंक मेरा इमोशन शायद राइट नहीं आ रहा होगा, तो इन्होंने मुझे बोला कि तुम ये समझो कि तुम, क्योंकि ये जानते हैं कि मैं अपने डैड से बहुत क्लोज़ हूँ, लाइक आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर। तो उन्होंने कहा कि तुम ये समझो कि तुम्हारे फादर को लेके जा रहे हैं, कि अब तुम नहीं देख पाओगे। तो वो इमोशन जो उस वक्त आया है, वो इस थॉट से ये सीड डाला गया था। और थ्रू आउट द फिल्म चारू जैसी कैरेक्टर जो है, शुरुआत में जैसे आप देखते हैं बहुत खुश, कंटेंट विद हर लाइफ, और फिर पूरी दुनिया उजड़ जाती है। तो पहला काम था मेरा इनके साथ और बहुत वल्नरेबल मैं रही हूँ थ्रू आउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द शूट। और जिस तरह से जो व्हाटएवर शी गोज़ थ्रू बहुत ही पेनफुल है, हार्ट ब्रेकिंग है। तो जब परफॉर्म भी करती थी तो बहुत ऐसे यहाँ पे ऐसे भारीपन सा लगता था। बट आई एम ग्लैड, ऐसा इट्स ऑल विशाल सर बस। ओके, अब अली, अब आप जो बोल रहे हैं इट्स ऑल विशाल सर अब हो गया है उसके correct, बहुत हो गया है। बियॉन्ड दिस। हाँ, तो बिकॉज दिस इज अ वेरी नेगेटिव रोल फॉर यू एंड यू सीम टू स्पेशलाइज इन दीज। Is that? No, you do them very well. Huh? You do them very well. Well, I mean, I don't know. So what does Vishal tell you? उसको तो अपने फादर के साथ प्यार की याद दिलाई। जब आपसे नेगेटिव करवाना होता है तब क्या बोलते हैं ये? विशाल जी को पता होगा। विशाल जी ने मुझे बहुत मैं पहले भी बोल चुका हूँ, I call it very very sophisticated manipulation. He gets what he wants
by making me feel, or the actors also feel, very empowered and feel like we've come up with something very original. But he leads the way, and it's beautiful. I don't see this every part that I do, and every part we all play in our lives. You can't judge it. I can't go in saying this is a negative part. There's a gaze, there's a perception, but I'm not part of that when I'm playing Ravi in this case. Of course, when you see the overview of the script that's written in a certain way and the story is going a certain way and you step out of it, then there's grey, but there's grey everywhere. So where do you draw the line? So I really like that it questions you, your morals and whatever you call it. So in the little system that we have for ourselves, this is black, this is white, that's red, purple, grey. I like to think he justified every action of his. Of course, it was way out of line. You have to know. Somewhere inside, it's out of line. But he's trying to get to somewhere. तो मेरा वो start से goal था. वो मैंने रखा था. And then we found, some version which we hope would work. The real life story is that the Jeevanathan, the character, Jeevanathan is like Amar Bhushan. Because Amar Bhushan was the head of security and counterintelligence, and it was his responsibility to make sure that there are no moles in RAW. And within RAW, there was a lot of controversy later about the book, because a lot of people in RAW thought that this was an exercise in basically exculpating himself, and RAW went through, since this is Delhi, RAW went through a massive cleanup after that. So almost everybody in the leadership team was removed, and Mr. M.K. Narayanan came in, and he brought in a police officer from outside, Homi Tharakan, Hormuz Tharakan, and cleaned up a lot of these senior research and analysis service officers. So that is the true story, which is quite complicated, and it's very brave, Vishal, of you to have touched it, and I must say it's also creditable for the system, as it's called, to clear the film as it is. So it's a good film, and I think it will make a big contribution, because these are things we rarely talk about. So Vishal, before I take it to the audience, because I know people are hungry, is there something that you would like to say about the film, and also make a comparison in terms of degree of difficulty with your other projects, आपने पहले जो किए हैं? जी हाँ, वो क्योंकि इस तरह की फिल्म को जब आप कागज़ पे पढ़ते हैं तो उसमें थ्रिल और सस्पेंस वो आप मिस कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज सो मच इन योर हेड. इट्स लाइक ए सर्विलेंस, यू आर बीइंग वॉच्ड, इट्स लाइक ए स्लो बर्नर सिमरिंग. तो वो जो एक वो होता है कि जहाँ उस थ्रिल को आप कैसे, कि जिसमें एक सीक्वेंस है जिसमें जब वो रवि को फॉलो करते हैं और वो बैग एक्सचेंज होता है, उसके बाद एक तो वो शूट करने में हमें यहाँ पे दिल्ली में उन जगहों में, फिर दरियागंज, चावड़ी बाज़ार, वहाँ से होके फिर वो लोधी गार्डन में आ जाता है. तो वो उस सीक्वेंस को, वो 4-4.5 मिनट का सीक्वेंस है, उसको पेपर पे कैसे भी लिखेंगे वो कभी भी होल्ड नहीं करेगा. तो जब भी ये लोग इस स्क्रिप्ट को पढ़ते थे तो वो बहुत, मुझे इस तरह के रिएक्शन आते थे, यार कुछ होता ही नहीं है फिल्म में, वो बस पीछे चले जा रहे हैं, किसी के चले जा रहे हैं और वो एक पॉइंट पे वो चला जाता है. तो और मुझे लगता था कि जिस तरीके से मैं ये फिल्म देख रहा हूँ वो शायद कोई देख नहीं पा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें इस तरह की फिल्म में सारे जो हमारे फाइन आर्ट्स के जो हथियार हैं, जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो लुक्स हैं, जो साइलेंट मूवमेंट्स हैं, साउंड इफ़ेक्ट्स हैं. जैसे उसमें एक आदमी जो है वो ग्रास कटर की साउंड है, तो वो ऑल दोज थिंग्स दे क्रिएट सस्पेंस एंड थ्रिल. सो दैट्स लाइक सिनेमा. तो वो सिनेमा समझाना पैसे वाले को वैसे भी बड़ा मुश्किल काम होता है. तो ये एक बड़ा मुश्किल था मुझे, इसके लिए फाइनेंस रेज करना बहुत मुश्किल था. और जिस तरीके से मैं इसे बनाना चाहता था, मुझे बहुत बार सजेशन दिया गया. ये फिल्म काफ़ी मुश्किलों से गुजरी है. जब सेकंड वेव आई तो हमारा ये जो यूएस वाला पार्ट था ये नहीं शूट हुआ था,
तो अब वीज़ाज़ मिलने बंद हो गए थे। हमने वीज़ाज़ के लिए अप्लाई किया। ये हमने कनाडा में शूट किया है इंसिडेंटली। देखा मैंने। जी जी, ये पार्ट यूएस को मैच करना था हमें कनाडा में। तो हमने कोई 40 वीज़ाज़ के लिए अप्लाई किया और हमें सिर्फ 9 वीज़ाज़ मिले, जिसमें एक्टर्स को मिला के। तो हम लोग ने 9 लोगों में जाके वो उसको अचीव करना, अपने आप में तो ये पता नहीं चल रहा था ये पूरा होगा भी या नहीं होगा, तो बहुत मुश्किलें थी। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। जो माँ जी का कैरेक्टर है वो इतना ओल्ड है कि उनको वहाँ ले जाना मुश्किल काम था। तो पूरे यूएस के पोर्शन में उनके डबल के साथ काम कर रहे हैं हम लोग, के बैक शॉट में वो दिखाई न दें, जो उनके फ्रंट शॉट्स हैं वो सब बॉम्बे में हुए हैं। मारा भी गलत इंसान को आपने। तो ये जो मुश्किलें थी ये जाके यूएस में शूट करना, तो ये सब बहुत मुश्किल था इसके लिए पैसा रेज करना। एंड फॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स दे केम फॉरवर्ड, दे कुड अंडरस्टैंड द फिल्म एंड दे आस्क्ड मी कि ओके यू मेक इट द वे यू वांट। सो मेकिंग दीज काइंड ऑफ फिल्म्स, अब मुझे आज ऑडियंस का रिएक्शन देख के मुझे कॉन्फिडेंस आया कि सबको इतना पसंद आई, और वो जो रिएक्शंस थे। अदरवाइज़ मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मैं भी पहली बार इतने लोगों के साथ देख रहा हूँ, तो मुझे लगता था कहीं जिन लोगों को ये लगता था कि अरे कुछ नहीं होता, कहीं वैसा ही तो नहीं हो रहा है, पर वक्त बताएगा कि शायद वैसा नहीं था वहाँ। तो ये शायद मैंने उस सवाल का जवाब दिया या जवाब में सवाल निकाले। तो In conclusion, I will say that one of Vishal's great strengths is that he understands politics, because everything about life, particularly in a democracy, is about politics. So he gets politics as I don't think any contemporary filmmaker does, and that's why हम उसे लाइन स्टोरी करते हैं। For example, इश्किया जो फिल्म है, अभी हम इश्किया में एक लाइन है, वो जब भी मैं गोरखपुर के बारे में लिखता हूँ या ईस्टर्न यूपी के बारे में लिखता हूँ, या अभी ये अंसारी और ये सब लोग जब पकड़े गए वहाँ पे गैंगस्टर, एक के बाद एक मारे गए या जेल में से सजाएं हुई, तो तब भी बार बार बोलने में इन्हीं की लाइन यूज करते हैं। वो लाइन इश्किया में है जो अरशद वारसी है ना, उसमें जो बोलता है शाह से कि मामू यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि हमारे भोपाल में तो सिर्फ शिया और सुन्नी की सेना होती है, यहाँ ठाकुर की अलग सेना, यादव की अलग सेना, दलित की अलग सेना वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो गेट्स द पॉलिटिक्स ऑफ द प्लेस राइट। सो पॉलिटिक्स एट द पीरियड इंडियन सिनेमा में ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, और उसको फिर उसमें ऑडियंस को एंगेज करना बहुत टफ होता है, क्योंकि ऑडियंस को फैंटेसी क्रिएट करके टफ करना आसान होता है। तो इसलिए खास करके आपको बताइए और आप दोनों को, क्योंकि आप बिल्कुल दोनों वो कैरेक्टर्स ही बन गए, क्योंकि असली एक्टर्स वही होते हैं जो जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको कैरेक्टर याद रहता है, आपको एक्टर याद नहीं रहता है। तो मैं अभी इंडियन एक्टर्स की बात तो नहीं करूँगा, पर जैसे जैक निकलसन है, तो जो कैरेक्टर प्ले करता है बाद में आपको कैरेक्टर ही याद रहता है। हमारे काफ़ी एक्टर्स होते हैं जब मैनरिज्म होता है वही रहता है, चाहे कोई भी रोल प्ले करें। तो ये हिम्मत की बात है आप दोनों की भी, कि आप दोनों कैरेक्टर बने और इससे बाहर निकलेंगे, नए कैरेक्टर्स बनेंगे। So very proud of you young people. Thank you, sir. I'm very happy. Thank you, Shekar sir. Thank you, Vishal sir.